Uh, Hello, am I audible? Hello, hello, am I audible? See, if you don't say hello, 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 Ajay, am I audible? Yeah, yeah, you are audible. Oh, okay. So, okay. So today is the last class. Ah, yes, yes. Yes. Okay. So today maybe we will finish this class with some questions from linear Mhm, algebra perspective. Okay. mhm. So okay, just wait. I have small doubt in Runge-Kutta method. If when clarified, it will be great help. Uh, is this from the assignment? No, not assignment, just method. Okay, How, then just because wait. in class, Uh, K1 and K2, you told okay, there is a formula and we have calculated like that. But uh-huh. I have some small doubt. That's why I thought if you can clarify it, it will be good. Okay, just let me share my screen and let me just join. Yes, Ajay, please ask. Mm-hmm. Y dash is Y. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. See, your condition is Y0 is 1, right?
So k1 will be, and what, and k1, okay, you write down, I'm saying, okay. So k1 will be f of t naught comma y naught. Now what is your f here? Can you tell? Y prime is y, right? So your f of t and yn will be y, y naught. Yeah. So k1 will just be y naught, which is 1 in your case. Okay. Yes. Now let's go to k2. Now what is k2? It will be f of t naught plus h by 2. Are you writing it down? Comma y naught plus h of h times k1 by 2. K1 by 2. So this is basically f of t naught plus h by 2. You are perturbing t naught by h by 2, and then you are perturbing, you are adding y naught to h times k1 by 2. You know t naught, you know h, you know k1, and you know y naught, right? And you keep on doing this, you will get k3 and then k4. So is this, oh, it might have been, it might have been possible that some typo or some computation from the previous question. Yeah. K1 by 2, yes. Yes. See you. Yeah. Yeah, yeah. What is those X, Y, J? I don't get it. Ah, yeah, yeah. These are universal formula. You just follow the formula here and you will get your answer. Okay. Don't worry. And then when you have these K1, K2, K3, K4, then you have your first you have your first iteration Y2, right? Y2 will be Y1, oh sorry, Y1 will be Y naught plus H by 6, then K1 plus 2K2 plus 2K3 by, sorry, plus K4, okay? Ah, okay, order 2 you are saying? Yeah, yeah, okay. Yes, yes, yes. So, yeah, okay. I think that is clear, right? Maybe you can refer the book also, no, Ajay? Ah, okay. Oh, okay. Yes, 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 yes. So I am just going to repeat what I said. Okay. So your k1 will be f of x naught comma y naught. Then you have, as soon as you have your k1, now because you are order 2, so your k2 will be f of, tell me, I'm waiting for you. No, you tell me. I just told you, no. H. You know this h by 2. You don't need to do. Sorry, I was mixing up with order 4. You didn't mention order 2 or order 4. Okay. Yeah, yeah. So let us say you have you have an ordinary differential equation, dy by dx equal to f of x comma y, and your initial condition is y of x naught is y naught. Okay. In your case, it is y0 is 1. Yeah. Now how do you find the Range Kutta order 2? Can you tell me?
Why is it order 2? Because you have to work for the two values of k, which is k1 plus k2. So in this case, when you are starting with x naught, your k1 will be f of x naught comma y naught. Yes, you just see. I'm telling you in general, all these things are to be done by you, right? Yeah. And then k2 will be f of x naught plus h comma y naught plus k1 h. Yeah. Now, when you have these values of k1, k2, what will be your y1? Now, the first iteration, right? So, first iteration, what it will be? It will be y naught plus h by 2 times k1 plus k2. Am I correct? Yeah. Now, you repeat this process. Okay. Okay. Yeah. Okay. See, the thing is, there can be typos. You may write it down to the professor. Okay. Yeah. So, do you have any other doubt? Okay. Then. So, am I out? So, you have another doubt, Ajay? Hello? Hello? So, if you have some doubt, please ask. Okay, then. See you. Two is two. That I don't know. Okay. Because if you're not speaking, please mute your mic. Okay. Okay. So, is this screen visible to you? Yes, sir. Okay. So, let us discuss some questions. So, yeah. So, this was one question.
if V and W are subspaces of Rn, you remember this last? Hello? Yes. Such that V intersection W is 0 and these dimensions add up to n, right? Right. Then you have to show there is a unique pair of vectors V and V in capital V. Were you able to resolve this part? No, sir. Why? सर समझ नहीं आ रहा था ये कब तक चलेगा समझ में मत आई नो यू आर ट्राइंग बट यू हैव टू ट्राई हार्ड ओके मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है बट क्वेश्चन पढ़ के ही मतलब समझ नहीं आता कि इसको अप्रोच क्या करना है इसमें देना क्या है ओके क्वेश्चन पहले समझते हैं ठीक है because otherwise you will be mugging up things and that will land you nowhere okay क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं कोई these two conditions you know okay that intersection is 0 and the second condition is the dimensions add up to n okay now it is saying if x belongs to Rn you take any x in Rn okay yes now what does it say you have to write x to show what do you have to show that x can be written as v plus w okay where v belongs to v and small w belongs to capital W first part right सर यहाँ पे हम x को Rn से ले रहे हैं तो मतलब उसकी फॉर्म x1 x2 अप टू xn तक होगी यस यस एंड दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं कि v and w ये भी शो करने हैं कि these are unique ओके मतलब अगर x को तुम किसी लेट से दूसरा v1 या दूसरा w1 यूज करके लिख सकते हो does it mean uniqueness then v1 has to be v right clear yes sir तो क्वेश्चन तो तुम्हें क्लियर था मतलब सर अभी क्लियर हुआ है now last we know from the last discussion that basis of v अगर मैं लूं कुछ याद है लास्ट में हमने किया था what are the bases of v what are the bases of Rn v1 v2 up to vn basis of v union basis of w right am I correct yes sir ये हमने लास्ट में देखा था ना हाँ जी सेकंड पार्ट में सॉरी नॉट v1 basis of v and basis of w so let's say basis इसके क्या माने थे हमने v1 v2 v and ओके एंड इसकी बेसिस मान लो wk plus 1 wk plus 2 अप टू और इससे कंफ्यूजन होगा अगर तो w1 w2 अप टू wl राइट जहां पे k plus l क्या होगा nk
x Rn में लोगे तो इसका क्या मतलब है कि वो x1 x2 up to xn की फॉर्म में आएगा नहीं बेसिस के टर्म्स में एक बेसिस गिवन ना Rn का आपको बेसिस पता है ना हाँ जी तो बेसिस की डेफिनेशन लगाओ x अगर Rn में है तो इसका क्या मतलब है तो वो स्पैन भी करेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो x को कैसे लिख सकते हो बेसिस Rn का एक बेसिस कहां पर है एक बेसिस दिख रहा है तुम्हें Rn का स्क्रीन पे यूनियन वाला हाँ तो अगर x Rn में है और ये बेसिस है Rn का तो x को कैसे लिख सकते हो सर एक सेकंड अगर x हमारा Rn में है और वो हमें बेसिस बताना है तो उसका तो सिंपली हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अप टू अल्फा n xn इज इक्वल टू 0 मैंने कहा एक बेसिस नहीं बताना उनको बच्चे एक बेसिस हमको गिवन है ना ऑलरेडी स्क्रीन पे हाँ क्या है वो बेसिस v1 v2 up to vk यूनियन w1 w2 up to wn तो अगर ये Rn का बेसिस है जो कि ये है हम प्रूफ कर चुके हैं राइट हाँ और अगर x Rn में है तो x को कैसे लिख सकते हो इस बेसिस की मदद से जो बेसिस गिवन है स्क्रीन पे v1 यूनियन w1 मोक्ष v1 यूनियन w1 का क्या मतलब बनता है x इज एन एलिमेंट ऑफ Rn एंड व्हाट डज यूनियन मीन सर इससे हम जो गिवन बेसिस है उससे हम x को कैसे लिखना है बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है मोक्ष लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट तो Rn का स्पैनिंग सेट पता है तुमको ऑलरेडी एंड मोक्ष यू आर नॉट लिसनिंग ओके ऑन द स्क्रीन देयर इज अ बेसिस गिवन ऑलरेडी हाँ जी डू यू सिट विद कॉपी एंड पेन यस सर okay so write down the basis that is given on the screen prove that basis of v union basis of w forms the basis of Rn am I correct yes now if x belongs to Rn what can you conclude from this basis of Rn if x belongs to Rn and Rn has this basis then you can write x as so ये तो पूरा कॉपी हो जाएगा ना फिर नीचे no you are not studying right properly तो मैं करता हूँ अपनी तरफ से बट समझ नहीं आ रहा है okay just write down the definition of basis linearly independent and spanning set do you know the meaning of spanning set or you have just mugged it up do you know the meaning of spanning set what does the spanning set mean if I say that this basis v1 v2 vk w1 w2 wl spans what does it span moksha Rn. Rn. So what does it mean that it spans Rn? What does it mean? कि ये specific element से हम पूरा Rn को cover कर लेंगे. Don't give me English. Give me mathematical term. Okay. How do we cover Rn with the help of this? What does it mean to cover Rn with the help of this v1, v2, vk, w1, w2, wl? What that it? It is a subset of Rn. That's it. Just a subset. You go back to your notes, okay, and just see there what does spanning set mean, Moksh? If I'm saying this set v1 v2 let us name this, okay, let us name this b. If this b spans Rn, what does it mean? Mathematically I'm asking, okay, that it can be written in a linear combination. Is it so what does it mean mathematically? Just give me some mathematical expression.
alpha 1 beta 1 alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 up to alpha n vn. And no, is this the basis? Just vn's are the basis, Moksha? Okay, one question I am asking you, just listen carefully. Okay. What does it mean when you are saying B, this capital B? Okay, this capital B spans Rn. What does it mean? स्पैन करने का मतलब क्या होता है बच्चे? समय को उसको मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ, इंग्लिश पेपर में इंग्लिश लिखनी है तुमको जाके? नहीं, सब वही तो मेरी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि you are not learning. You are not. I don't know what like these definitions you should know. I've explicitly written all the definitions. What does a spanning set mean? You go back in the notes and just tell me. Okay, I am waiting. सर जो मैंने लिखा हुआ अपने नोट्स में वो ये है कि जैसे हमारे पास स्पैन ऑफ एस बताना है जहाँ पे एस v1 से लेकर vn तक है, तो it is equal to the definition of basis. Okay, okay, I'll go for you because I don't know what you are reading these days. This is so disheartening. Okay, you don't know the definition of basis. Yes. This is the definition of basis, right? B is linearly independent and of B is V. Now what does this span of B is V mean? The second condition. सर इट मींस कि जब हम बी के जो गिवन एलिमेंट्स हैं उसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा बी में आएगा। मतलब जब हम इसे अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 को अल्फा n vn की फॉर्म में लिखेंगे। किसको अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 की फॉर्म में लिखोगे? किसको लिखोगे भाई? किसको? We have done so many questions on basis, right? Like, what will you write? What does this condition mean? You just take 10 minutes, half an hour, I am here. Okay, you just clear this. We have written here B is a spanning set for V, right? Now, what does it mean? What does span B? What does span of B means? It is the collection of. Are you there, Moksh? Yes sir. So, what does span of B mean? What is this set? Span of B. सर नहीं पता। Span of B you don't know. Moksh, please. ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है. Okay. Just think. Span of B. How did you define span of B? So मैंने जो नोट्स में लिखा हुआ इतना है कि each vector of B can be written in form of a linear combination which lies in B. Yes, exactly, exactly. So what does it mean? This second statement precisely means this, right? If you are saying basis, let's say if I am saying B, let's say some V1, V2, Vn, okay? This is a basis set.
for a vector space V. Now what does it mean? It means two conditions, right? First, B is a linearly independent set. Am I correct? Right. Yeah. And what does second condition mean? Ki every vector in V, this is precisely spanning set means. You take every, you know, every vector in capital V, the vector space, okay, can be written as a linear combination of can be written as a linear combination. Just a minute. Linear combination of linear combination of why are you looking at notes? This you should know. एग्जाम आ रहा है. Linear combination of elements of V. Elements of V. इसका क्या मतलब है? Okay, you gave me a home. Okay, now I will ask. What does this mean? This is again English, right? Yes. Now what does it mean mathematically? कि तुम कोई भी V लो, capital V में, उसको हम linear combination की फॉर्म में लिख सकते हैं B के एलिमेंट्स की. मतलब क्या हुआ? कि V can be written as, give me expression. Alpha 1 V1. Very good. Plus alpha 2 V2. Very good. Alpha n V1. Yes. Yes, exactly this. For some alpha 1 belongs to alpha 2 and alpha n belonging to R. Okay? Now this is the definition of basis. कहाँ दिक्कत है बताओ. दिक्कत तो है, मुझे पता लग रहा है तुमको. बताओ ज्यादा तेज हो रहा है सब कुछ. नहीं सर, ये स्पेलिंग वाले में थोड़ा हमेशा कंफ्यूजन होता है. You just write the definition, okay? Now अगर एक सेकेंड वही क्वेश्चन लिखा है. नहीं सर, वो ऊपर वाला डेफिनेशन देखना है. लीनियरली इंडिपेंडेंट में कुछ दिक्कत होता है? नहीं सर, वो एकदम सॉर्टेड है, वो आ जाता है समझ. तो देखो दोनों डेफिनेशन में तुमको लीनियर कॉम्बिनेशन तो लेना ही है, राइट? पहले में क्या प्रूव करना था कि तुम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लो, इट विल बी जीरो. इट विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, राइट? आई मीन द चूजिंग इट शुड बी जीरो. एम आई करेक्ट? यस. इसमें क्या कर रहे हो तुम? इसमें भी लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हो कि मैं हर एक लीनियर कि मैं हर एक वेक्टर को V के हर एक वेक्टर को इन B के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ. V के हर एक वेक्टर को जैसे तुम R2 में हर एक एलिमेंट को कैसे लिख सकते हो? X को x1 even plus x2 e2, right? For some x1 x2. तो ये yes. e2 क्या हो गया? What does it mean कि every vector in R2 can be written as a linear combination of e1 comma e2. Yes. हमने एक एग्जांपल और देखा था P of n का, राइट? इसमें हर एक पॉलिनोमियल अगर मैं लूं कोई भी, लेट्स से P, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अल्फा 1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा 2 x अल्फा n xn, राइट? राइट. तो ये जो 1x xn है, इसका क्या मतलब है कि एवरी पॉलिनोमियल, एवरी वेक्टर इन दिस स्पेस Pn
as a linear combination of 1 comma x power n. Am I correct? Yes. एंड ये इतनी बड़ी बात क्यों है? देखो बेसिस इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि वेक्टर स्पेस है इनफाइनाइट, राइट? तुम्हें नहीं पता है, बहुत सारे एलिमेंट इनफाइनाइट एलिमेंट है। हाँ जी। और इसमें तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ कुछ फाइनाइटली मेनी वेक्टर्स लो, लेट्स से v1 v2 v3, लेट्स से vn, ओके ओके। और तुम तब ये कहते हो कि मैं v का हर एक एलिमेंट जब तुम लोगे इन v, तो तुम इसको इनकी मदद से ट्रैक कर सकते हो। बेसिस में यही मतलब है ना? हाँ। और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि स्पेस था इनफाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट, राइट? पॉइंट्स कितने? इनफाइनाइट, राइट? पॉइंट्स तो फाइनाइट होंगे। पॉइंट्स इनफाइनाइट होंगे ना वेक्टर स्पेस में। हम्म। पर बेसिस क्या कहता है कि तुम उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को, किसी भी पॉइंट को, कोई भी इनफाइनाइट मतलब among all those points you just study these n vectors v1 v2 vn, काफी है। क्यों? क्योंकि बाकी सब वेक्टर क्या है? इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। ओके, हाँ जी। that is why basis is so strong, this definition is so strong. what does it say कि पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस तुम n पॉइंट की मदद से कवर कर सकते हो। दिस यू आर करेक्ट, बट यू डिड नॉट नो मैथमेटिकली व्हाट डज इट मींस कि वो n वेक्टर्स जो होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और बाकी का हर एक वेक्टर इन n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है? हाँ जी। इज दिस फाइन? यस सर। Yes. Now tell me this. Okay, coming back to this question. Rn का एक बेसिस पता है, राइट? इस केस में। हाँ. Okay, let us go back to the question again. V and W are subspaces of Rn. Okay. That उनका intersection is 0 and their dimension, that is dimension V. Dimension क्या होता है? Number of elements in the basis. Yes. तो dimension V plus dimension W add up to n. Okay. हाँ जी। It says अगर x कोई Rn में है तो तुम्हें दिखाना है सबसे पहले कि x को तुम कैसे लिख सकते हो? V plus W की फॉर्म में। हाँ। ओके। ओके। दूसरा क्या दिखा रहा है कि अगर तुम किसी और फॉर्म में लिख पा रहे हो, लेट्स से v1 plus w1, देन ये v के इक्वल होगा और w1 w के इक्वल होगा। तो पहला, तो दूसरी चीज क्या है? यूनिकनेस, राइट? राइट। यूनिक मतलब क्या होता है? एक, राइट? एक ही एलिमेंट होगा ऐसा। तो वो ये क्या कह रहा है कि एक ही ऐसा v मिलेगा इस x के लिए और एक ही ऐसा w मिलेगा इस x के लिए, such that you can write x as v plus w. राइट। Now tell me, तो हमने क्या देखा था लास्ट में कि Rn का अगर बेसिस क्या हो सकता है? v का एक बेसिस यूनियन बेसिस ऑफ w, राइट? क्योंकि देखो तुम्हें क्या कवर करना है, लॉजिकली सोचो, x को क्या लेना है? v plus w में लिखना है, राइट? राइट। एक v का एलिमेंट चाहिए, कैपिटल V का, एक कैपिटल W का एलिमेंट चाहिए। तो कैपिटल V के एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ v1 v2 v के, राइट? और W के एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे? सेम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W। यस। तो कई बार क्या किया करो, जो तुम्हें दिया होता है ना, यू कैन ऑलवेज बैक, तुम्हें क्या शो करना है? क्या शो करना है तुम्हें? x written as v plus w, राइट? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, यानी कि v को तो तुम कैसे लिख सकते हो? अल्फा 1 v1, राइट? अल्फा के v के, why? Because this is a basis, right? Am I correct? यस सर। And w को कैसे लिख सकते हो? अल्फा 1 बीटा w1 बीटा l w1। तो यानी x को कैसे लिखना पड़ेगा तुम्हें? क्योंकि ये तो तुम हमेशा लिख सकते हो ना v plus w, ये भी जब पुट करोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी? अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा के v के, am I correct? यस। प्लस
बीटा 1 W1 अप टू बीटा L WL। तो यानी अगर तुमने ये दिखा दिया तो तुम खत्म, राइट। तो में तुम देखो V1 V2 Vk W1 W2 WL ये पिक्चर में आ रहे हैं, है ना। हाँ। तो मुझे यानी बेसिस लाने ही पड़ेंगे, ये वाले बेसिस, यूनियन वाला। यस। हाँ। Rn का बेसिस है ना ये यूनियन। तो अगर तुम कोई एक Rn में लोगे, व्हाट डज इट मीन कि उसको हम ऐसे कॉम्बिनेशन अल्फा 1 V1 प्लस अप टू अल्फा के Vk, वेरी गुड, यूनियन प्लस। बच्चे ये यूनियन तो सेट में है ना, सेट का यूनियन का क्या मतलब होता है? सेट के यूनियन का क्या मतलब होता है कि वो प्लस हो रहे हैं, कंबाइंड है। सेट का यूनियन का मतलब ये होता है कि लाइक यू कैन राइट दिस सेट एज V1 V2 Vk कॉमा W1 W2 Wk। नाउ अब ये बेसिस है, मुझे पता है, राइट। Now tell me, you can write x as alpha 1 v1 plus up to alpha के vk, then plus beta 1 w1 up to beta l wl। Yes, yes, exactly। अब देखो ये पहला सम है, ये v का एलिमेंट है। हाँ, है ना। हाँ जी। तो इसको मैं v ले लूं। ओके। एंड प्लस का, ये प्लस का प्लस आया बीच में। हाँ, ये w हो जाएगा और ये हमारा w। तो तुम लिख तो पा रहे हो ना x को? यस और नो? राइट, यस। फॉर v इक्वल टू, इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। एंड w इक्वल टू बीटा 1 w1, ठीक है। यस सर। पार्ट तो डन हो गया, राइट। अब यूनिक दिखाना है, सॉरी। ये v में होगा और ये w में होगा। क्यों है ये v में, मोक्ष? सर अभी स्पैनिंग वाले में हमने देखा ना कि वो मतलब सारा v में होना चाहिए फर्स्ट वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि देखो v1 v2 vn ये कहां से आ रहे थे? v से, कैपिटल v से, राइट। और v क्या है? वेक्टर स्पेस है। अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 ये भी किसमें होंगे? v में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद भी तो v में रहता है ना, राइट, क्योंकि वेक्टर स्पेस है। तो इनका जब सम करोगे तो भी इसमें रहना चाहिए v में। करेक्ट, क्योंकि वेक्टर स्पेस है, राइट। तो इसलिए सब कुछ v में रहेगा। ओके ओके, या सिमिलरली ये जो बीटा 1 w1 प्लस बीटा l wl है, ये भी किस में रहेगा? w में। Am I? Yes sir. Now question is, so तुमने ये लिख तो दिया। क्वेश्चन इज कि यूनिक क्यों है, राइट। तो यूनिकनेस प्रूव करो। x को मान लो तुम दो तरीकों से लिख सकते हो, v प्लस w एंड x इज इक्वल टू लेट्स से v1 प्लस w1। ओके ओके, जहां पे v और v1 कहां से आएंगे? v से एंड w w1 कहां से आएंगे? w से। यस, वेरी गुड मोक्ष। नाउ तुम्हें क्या दिखाना है? देखो हर बार मैं कहता हूं जब भी तुम्हें कुछ करना है तो सबसे पहले लिखो क्या शो करना है। v इक्वल एंड w इज इक्वल्स टू w। यस यस, तो ये दिखाना है। अब देखो ये दोनों चीजें x के इक्वल है, राइट। यस, तो ये आपस में भी इक्वल होंगी, व्हिच मींस v प्लस w
should be same as v1 plus w1, right? और ये क्या बन गया, v minus v1 is same as w minus w. ये किसका एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला v का. वेरी गुड. ये किसका एलिमेंट है, w का. w का. बट ये क्योंकि ये w1 minus w किसके इक्वल है, v के एलिमेंट के, तो ये v इंटरसेक्शन w में आ जाएगा. हाँ, ये हम कर चुके हैं ना लास्ट क्लास. यस सर, वो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा और v is equals to v1 हो जाएगा. तो इसका क्या मतलब है कि w1 minus w जो कि v इंटरसेक्शन w में था जीरो है, राइट? So what does it imply? w1 minus w is zero. ये तो प्रूफ करना था. Yes or no? Yes sir. Now जब w1 is equal to w2, what does it imply? That v minus v1 is zero. Am I? Yes sir. So what does it mean? V equal to v1. And you are done, right? Yes sir. Okay. तो इस क्वेश्चन में जो हमने देखा उसको हम कहते हैं डायरेक्ट सम. क्या कहते हैं? डायरेक्ट सम. यस, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सम. नाउ व्हाट डज इट मीन? ओके, क्वेश्चन तुम कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है? इस क्वेश्चन में कि अच्छा एंड डब्ल्यू आर सबस्पेसेस of some bigger space, let's say Rn, okay, or let's not say Rn, otherwise it will be confusing. V1 और V2 तो सबस्पेस है किसी बड़े स्पेस के V, okay? Okay. So what do you have here? You have V here, okay? And just roughly I am saying, okay? Just a minute. Yeah. Am I audible? Yes sir. Now V1 V2 सबस्पेस होने का क्या मतलब है कि वो इसी में है कहीं. Let's say this is V1 and this is V2. Just set form में I am telling. Oh, I am not. Oh, is it visible? Yeah. Yes sir. Yeah. तो पहली कंडीशन क्या है, सबस्पेस होनी चाहिए. सबस्पेस तुम्हें पता है, राइट? हाँ जी. A subset which is a vector space in itself, right? यानी वो जो तीन प्रॉपर्टी फॉलो करे, राइट? यस. दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, v1 इंटरसेक्शन v2 क्या होना चाहिए, जीरो. जीरो. ओके. यस. एंड थर्ड चीज बस इतना है. ओके. तो tell me say that v1 इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सम. क्या कहते हैं? डायरेक्ट सम. दोनों सबस्पेसेस होने चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो. जीरो. तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने एक्चुअली क्या प्रूफ किया, तो v1 डायरेक्ट और ये सेट कैसा होता है, मैं सेट तो डिफाइन करने ही भूल गया. v1 डायरेक्ट सम v2 का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट इस सेट का, ओके, जहां पे v1 किससे आएगा, कैपिटल v1 से, और v2 किससे आएगा, कैपिटल v2. ओके, ऑब्वियस है ना डेफिनेशन. हां, ठीक है. इज इट अ सबस्पेस? v1 plus v2. v1 डायरेक्ट सम v2. इट्स अ सबस्पेस. यस. पहले बताओ किसका सबसेट है ये. कैन आई से दिस इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल V? सो कैपिटल एक सेकंड, जो v1 और v2 है वो दोनों कैपिटल V के सबसेट है. यस. हाँ, तो उनका सम भी कैपिटल V का सबसेट होगा क्योंकि V एक वेक्टर स्पेस है, राइट? यस. नाउ इज इट अ वेक्टर स्पेस?
हमने देखा था ना कि इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस बनता है। हाँ ओके, ना दूसरा चीज, तो जीरो होगा v1 डायरेक्शन v2 में। यस राइट, जीरो तो होना चाहिए ना, क्योंकि v1 में जीरो कैन बी रिटन एज जीरो प्लस जीरो एंड जीरो बिलोंग्स टू v1 एंड जीरो बिलोंग्स टू v2। यस और नो? यस ये सेट क्या कहता है, देखो तुम टुकड़े कर पा रहे हो, राइट। एक एलिमेंट को तुम तोड़ पा रहे हो दो पार्ट में, जहां पे पहला पार्ट v1 में है और दूसरा पार्ट v2 में। Now, दूसरा क्या है कि अगर x और y v1 डायरेक्शन v2 में है, क्या शो करना है? x प्लस वाई भी v1 डायरेक्शन v2 में होगा। वेरी गुड। Okay, let me just make this a quick remark. Okay, direct sum I will define. Okay, direct sum I will define. Okay. This is called v1 plus v2, and this is obvious, right? By definition, this set v1 plus v2. What does it mean? Take element from v1, take element from v2, and add it up. Okay. Yeah. So यहाँ पे अभी हम प्लस लगाते हैं इसमें। डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है? Yes. Okay, it might be a bit confusing. I will define direction बाद में, ठीक है? क्योंकि हमने Okay. किया है अभी, इसीलिए हमारी हाइपोथेसिस वही है कि v1 and v2 are subspaces of a bigger vector space. और हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? v1 Subspace. plus v2. Okay? What does it mean? It means पहला वेक्टर v1, डेफिनेशन इज क्लियर, राइट? a plus b अगर सेट है, इसका क्या मतलब है? a लो a से, b लो b से, राइट? और इनको ऐड दो। Yes. सारी कलेक्शन, ठीक है? हाँ जी। तो v1 plus v2 में भी यही चल रहा है। Why is it important? We will study. So now the question is, why this x plus y belongs to v1 plus v2? Tell me quickly. Why does x plus y belong to v1 plus v2? Yes. x और y v1 plus v2 में है, राइट? तो तुम्हें क्या दिखाना है कि तुम x plus y को भी तोड़ सकते हो। Am I correct? Okay. x v1 plus v2 में तो यानी कि तुम x को तो तोड़ ही सकते हो ना। तो इसको लिख सकते हो तुम आराम से मोक्ष, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? ये नया कॉन्सेप्ट है, आराम से। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो v1 plus v2 ये सबस्पेसेस हैं, ओके? हाँ जी, सबस्पेसेस है। इसके हर एक एलिमेंट कैसे हैं कि तुम इनको लिख पा रहे हो स्मॉल v1 प्लस स्मॉल v2 में, जहां पे स्मॉल v1 कहां से आ रहा है? कैपिटल v1 से। v2 कहां से आ रहा है? कैपिटल v2 से। ओके, ये नोटेशन में ये क्लियर है ना? देखो, हाँ सर, ये तो क्लियर है। यस। तो अभी अगर x v1 plus v2 में, तो तुम x को कैसे लिख सकते हो? लेट्स से x1 plus x2, राइट? जहां पे x1 कहां से आएगा? v1 से। वेरी गुड। x2 और v2 से। वेरी गुड। Same thing you can do for y. So y you can get it as y1 plus y2. जहां पे y1 कहां से आएगा? v1 से। वेरी गुड। और y2 कहां से आएगा? v2 से। वेरी गुड। तो इधर से देखो x plus y क्या हो गया? Can I say x1 this will be x1 plus y1 plus x2 plus y2. Am I correct?
यस। अब देखो x प्लस प्लस वाई वन कहाँ पे होगा? x1 कहाँ पे था? v1 में। वेरी गुड। y1 कहाँ पे था? v2 में। y1 अच्छा v1 में, हाँ। तो x1 प्लस y1 कहाँ पे होगा? v1 में। v1 is a subspace, right? Right. तो how will you write? Since मोक्ष तुम्हें कहीं जाना है? No sir. Okay. Since v1 is a subspace of v and x1 comma y1 belongs to v1, right? So there yes. x1 plus y1 also belongs to v1. Am I correct? Yes. And similarly, since v2 is a subspace, write it like this. And x2 comma y2, this belongs to v2. So what can you say about x2 plus y2? ये भी v2 में होगा। तो हो गया ना प्रूफ कि x plus y, देखो ये एलिमेंट किसका है v1 का? ये एलिमेंट किसका है? v2 का। तो यही तो प्रूफ करना था ना। हाँ जी, x plus y भी v1 और v2 में बिलोंग करेगा। उसको तोड़ सकते हो तुम, ठीक है? ओके। तो कई बुक्स में तुम देखोगे, यू नो, दे विल राइट इट एज x plus y कैन बी रिटन एज v1 plus v2, ओके? वेयर क्या होना चाहिए? x1 plus belongs to v1 और v2 क्या होना चाहिए? x2 plus y2 in v2। तो ये राइट करना था ना? हाँ जी, कि this belongs to v1 plus v2। Am I correct? Yes sir. Now what about the third property? थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? इधर मल्टीप्लाई v1 plus v2 में एंड अल्फा ले रहे हो r, r में, तो क्या शो करना है कि अल्फा x b v1 plus v2 में आएगा। वेरी गुड, सी यू नो एवरीथिंग, ओके? घबराना नहीं है किसी भी कीमत पे, ओके? तो देखो अल्फा x क्या होगा एक्चुअली? अल्फा ऑफ x1 plus x2, जहां पे x1 कहां से आ रहा है? v1 से, और x2 कहां से आ रहा है? v2। वेरी गुड। तो ये तो खुल जाएगा, राइट? अल्फा x1 plus अल्फा x2 यू कैन राइट, राइट। अगेन अब देखो, क्योंकि v1 सबस्पेस है, सिंस v1 and v2 are subspaces, am I correct? Yes. तो अल्फा x1 कहां पे होगा? v1 में। वेरी गुड। एंड अल्फा v2 में। तो हो गया ना प्रूफ? हाँ जी। So this implies alpha x, which is alpha x1 plus alpha x2, and this belongs to v1 plus v2। v2। Okay. हमने क्या प्रूफ किया कि v1 plus v2 is a subspace of v। Am I correct? Yes. Very good. v1 plus v2 is a subspace of v। v। तुम्हें याद है अगर हम पे दो सबस्पेसेस हैं, देखो अभी पिक्चर क्या है, तुम पे बिगर स्पेस है v, ओके? यस। और तुम दो सबस्पेसेस लिए इसके, लेट्स से v1 और v2, ओके? यस। सबस्पेस ऑफ v एंड सबस्पेस ऑफ v। तो तुम इनसे नए सबस्पेस बना सकते हो, राइट? पहला सबस्पेस तुम क्या खड़ा कर सकते हो? v1 इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन V2, राइट? ये हमने प्रूव किया कि सबस्पेस है, राइट? हाँ जी। और दूसरा क्या है? V1 plus V2। यस। तो V1 plus V2 में V1 है, क्योंकि V2 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V2 को 0 पुट कर दो, राइट? तो V1 हो जाएगा। यस। तो दिमाग पहली चीज, यानी कि दो सबस्पेसेस अगर तुमको गिवन है तो तुम उनसे नई सबस्पेसेस बना सकते हो। एम आई करेक्ट? गिवन सबस्पेसेस के भी सबस्पेसेस नहीं नहीं, गिवन सबस्पेसेस के नहीं, सबस्पेसेस V के ही। ओके, हमें V एक सबस्पेस दे रखा है और V एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, ठीक है? ओके, तुमने इसके दो सबस्पेस उठाए रैंडमली, कोई भी V1 और V2। हाँ करेक्ट। तो तुम उनसे नए सबस्पेसेस बना सकते हो V के। ओके, कैसे? V1 इंटरसेक्शन V2, ये हमने प्रूफ किया ना, दिस इज सबस्पेस ऑफ V, राइट? एंड ये अभी हमने प्रूफ किया है कि V1 plus V2 is also subspace of V, right? Now my question is, can I say V1 is contained in V1 plus V2? Yes, V2 को अगर 0 रखेंगे तो yes, क्योंकि तुम कोई भी एलिमेंट उठाओ V1 का, तुम इसको कैसे लिख सकते हो? V1 is V1 plus 0, right? And this belongs to V1 plus V2, तोड़ लिया ना हमने? Right. तो what does it mean actually? तुमने V का कोई भी एलिमेंट उठाया, उसको तुम किस में डाल पा रहे हो? V1 plus V2 में। What does it mean? That V1 is a subset of V1 plus V2? सबसेट का मतलब क्या होता है कि तुम कोई भी V1 उठाओ, इस इधर से कोई भी एलिमेंट उठाओगे और उसको तुम प्रूफ करोगे कि वो एलिमेंट कहां पर है? V1 plus V2 में। And similarly, can you say V2 is a subset of V1 plus V2? Right. Right? Yes, sir. So what does it imply? V1 union V2 is a subset of subset. I am not saying subspace, okay? Set of V1 plus V2. Does this make sense? Yes, sir. Okay, my question is, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? मैंने V1 and V2 सबस्पेसेस लिए V के, ओके? Yes. Does V1 is V1 union V2 a subspace of V? क्वेश्चन क्लियर है? यस। इंटरसेक्शन तो हमने देखा था ना, बनाता है। इंटरसेक्शन तो था। तो सेम क्वेश्चन हम सबस्पेस के लिए भी पूछ सकते हैं ना बच्चे? सेम क्वेश्चन हम यूनियन के लिए भी पूछ सकते हैं ना? हाँ। तो ये बनाएगा? आंसर इज नो। कैसे? देखो, R2 लो, ठीक है? ठीक है। You know that this V1, V you take R2 and V you take x-axis. Okay. What does x-axis means? X comma 0 such that x belongs to R. Am I correct? Yes. Now V2 लो y-axis. What does it mean? 0 comma y. तो इनका यूनियन क्या हो गया? x-axis और y-axis का यूनियन का, राइट? यानी yes. तो माय क्वेश्चन इज 1 comma 1 यूनियन में आने की क्या कंडीशन होती है? अगर मैं दे रहा हूं कि x belongs to A union B, what does it mean? Either A में भी, हाँ, या तो A में होगा या B में होगा, ठीक है? And this is if and only, right? This is the definition. Yes. Now my question is, see, 1 comma 0 belongs to V1, right? Yes. And 0 comma 1 belongs
belongs to V2. V2. If 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 V1 union V2 is a subspace, okay? अगर ये सबस्पेस है, मान लो, ओके? देन मुझे पता है कि 1,0, सो यहाँ से ऊपर से क्या है कि 1,0 बिलोंग्स टू V1 यूनियन V2, एम आई करेक्ट? हाँ सर, ऊपर प्रूफ किया था। नहीं, ऊपर प्रूफ नहीं है, देखो ना, ये 1,0 V1 में था ना, तो ये V1 यूनियन V2 में भी हो गया ना? हाँ, ओके। एंड सिमिलरली 0,1 भी यूनियन में होगा। कंडीशन क्या है यूनियन में आने की? इनमें से एक में हो कम से कम, राइट? राइट। 1,0 किस में है? V1 में। तो V1 में है नहीं, V1 यूनियन V2 में है। यस सर। एंड 0,1 किस में था? V2 में। तो वो भी यूनियन में होगा। तो अगर ये सबस्पेस है V1 यूनियन V2, तो इनका सम भी V1 यूनियन V2 में होना चाहिए ना? यस। यानी कि ये सम हो? यस सर। बट इनका सम क्या है? 1,1। वो नहीं बिलोंग करता। तो यूनियन में, वेरी गुड, यूनियन में होने का क्या मतलब है कि आइदर 1,1 belongs to V1, V2 belongs to V2, दोनों ही जगह फॉल्स है ना ये? तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, राइट? एम आई करेक्ट? यस सर। So what does it say? What does it say? That V1 union V2 need to be a subspace. Okay. Yes. Intersection हमेशा होगा. Intersection होगा, but union जरूरी नहीं है कि हो. Okay? Okay. Mosh, is this clear? Yes sir. But ऊपर हमने क्या देखा है कि या वो सब छोड़ो. या अब बात करते हैं डायरेक्ट सम की. V1 डायरेक्ट सम V2, ये सेट, this is defined as V1 plus V2 given V1 intersection V2 is 0. Okay. मतलब ये सेट सेम ही है V1 plus V2, बस तुम्हें क्या गिवन होगा कि V1 intersection V2 is 0. Okay? Okay. Is this clear? Yes sir. तो अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ये इतनी मेहनत इसलिए की थी क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो. तुमने क्या प्रूफ किया था अभी इस क्वेश्चन में कि थर्ड पार्ट में, इस पूरे क्वेश्चन में मैं ये पूरा क्वेश्चन नीचे कॉपी करता हूँ, ठीक है? ओके. We have proved this, right? तो what does it mean? देखो, you are saying every vector of x, every vector of Rn can be written as V plus W, right? For some V in V belongs to V and W in V. But ये किसका एलिमेंट है? Yes or no? Yes. तो मैं ये कह सकता हूँ कि Rn किसका सबसेट हो गया? V plus W का. Am I correct? Yes. ये मतलब होता है ना सबसेट का? हाँ जी. Rn का हर एक वेक्टर तुम किस में डाल पा रहे हो? कैपिटल V प्लस कैपिटल W में. ओके. बट V प्लस W तो ऑलरेडी सबसेट होता है ना Rn का. राइट. तो व्हाट डज इट मीन? कि ये भी Rn में आएगा, V प्लस W. V plus W is Rn. Am I correct? ये yes. पूरा क्या हो गया? Rn. Rn space. ठीक है. Yes. But हमने भी ये देखा है कि V intersection W इस क्वेश्चन में क्या गिवन था?
जीरो। तो एक्चुअली v प्लस डब्ल्यू क्या डायरेक्ट सम है ना? हम्म। ओके। So what does it imply? That v direct sum w is actually Rn in this question. Okay. Okay? Yes sir. So you just take few minutes. I am just coming back. Okay? यहाँ पे देखो अच्छे से स्क्रीन पे क्या हो रहा है. ठीक है? Okay. तो मैं क्या करें और मैम एक क्लास में ओके तो इसका जो सीआई सर्विस यू नो दिस राइट या वो क्या क्लास यस हाँ छोटा चलिए आंसर हाँ तो ये वैसे तो मैं बोलता हूँ सर क्लास में वो रुक जाएगा थैंक यू
जी सर। सो इज दिस क्लियर? यस सर। सर स्पीड हट गई। हाँ वही, एक मिनट। अब कहाँ जाना होता है? नो इट्स फाइन राइट? यस सर। ओके, तो टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिस? बेसिस वो से बेसिस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है एक तो, और वो स्पैन होता है एंटायर उस पे वेक्टर स्पेस पे। यस, स्पैन का मतलब बताओ, अभी शुरू में तुम यही फंसे हो, ठीक है? कि जो बी के एलिमेंट्स हैं हम उसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्फा एलिमेंट है क्या? शुरू से बोलो। जो बी के एलिमेंट्स हैं, बी के वी के, बी बी बच्चे बी तो बेसिस है ना, तो उसके एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने को क्या मतलब है? अभी तो इतना डिस्कस किया। आंसर बी के फॉर यू जस्ट राइट डाउन दिस डेफिनेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन 20-25 बार, ठीक है? फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू बी, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? यस, ये फिफ्थ वाला हुआ सेक्शन बी का। सर सिक्स्थ वाला नेक्स्ट पेपर का फिफ्थ क्वेश्चन। एक सेकंड सर। नहीं सर, ये नहीं हुआ था। इसमें हमें सेकंड पार्ट तो हो गया होगा सर। एक सेकंड, इसका मैंने किया था। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस? यही वाला क्वेश्चन देख रहे हो तुम? पेज नंबर 4 जो तुमने पीडीएफ सेंड की है। हाँ जी हाँ जी। यस, और टेल मी। तो सर इसमें पूछा है कि सबस्पेस की डायमेंशन क्या होगी, तो पहले हमें सबस्पेस निकालना पड़ेगा। सबस्पेस तो गिवन है ना। सबस्पेस क्या है? ये यू राइट? ओके, x1 से xn से ये fn जो है वो आर नहीं है। यस, मैंने बोला था ना उस दिन। हाँ जी, और जहाँ पे x1 प्लस तो लिखना xn ही है, लेकिन समझने के लिए क्या रखना है? rn, ठीक है? rn। यस, तो पहले हमें इसके बेसिस निकालने पड़ेंगे। वेरी गुड, तभी तो डायमेंशन बता पाओगे ना। और बेसिस निकालने के लिए पहले तो लीनियर इंडिपेंडेंस करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने तुम्हें तरीका बताया था ना। जो भी इक्वेशन है सबस्पेस की, मैंने तुम्हें बताया था पहले सबस्पेसेस कौन से होंगे जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यस और नो, लीनियर इक्वेशन याद है? नहीं सर। अच्छा, तुम्हें मैं बताता हूँ। ये देख रहे हो स्क्रीन पे, ये चीज उस दिन हमने डिस्कस किए थे ना, आरएन के सबस्पेसेस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि वो कुछ x1 x2 xn ऑब्वियसली, जहां पे x1 x2 xn कुछ इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। हाँ, अच्छा याद आ गया? हाँ जी हाँ जी। ये जो W है, तो इधर देखो, अभी जो है इसमें भी ये कितनी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? 10 इक्वेशंस बनेंगी। नहीं, U की डेफिनेशन देखो। एक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, x1 + 2x2। देखो पहले ध्यान से सुनो, तुम सुनते नहीं हो, एक तो ये बड़ी दिक्कत है। rn गिवन है, ठीक है? rn में पता है? हाँ जी। अब क्वेश्चन आता है कि rn
कई बार हमने देखा है कि ये सबस्पेस होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं ना आरएन के, कि वेदर बी सबस्पेस ऑफ आरएन, राइट। तब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि आरएन का सबस्पेस पहचानने के सबसे अच्छे तरीका, और यही सबस्पेस होते हैं आरएन के जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दोस x1 x2 x3 इन आरएन सच दैट ये कुछ इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। व्हाट आर these are लीनियर इक्वेशन, राइट। कितनी होंगी ये पता नहीं, बट यही होंगी, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन तुमको पता है ना? हाँ जी, हाँ जी, लीनियर इक्वेशन पता है। किसमें? x1 x2 xn, ठीक है। मतलब लीनियर इक्वेशन बेसिकली इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रखा होगा, हाँ। और ये पहली इक्वेशन होगी, मान लो कोई दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रखा है, कोई तीसरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रखा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऊपर एग्जांपल है, पॉइंट नंबर 2 x, y, z, w, ओके। इसमें कितनी इक्वेशन दे रखी है तुमको? 2, राइट। तो ये तुम्हें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये क्या है, सबस्पेस है। सबस्पेस, ओके ओके। तो अब इधर आओ, पहले बताओ इसमें कितनी इक्वेशन है? एक ही इक्वेशन है, तो ये सबस्पेस होगा ना? हाँ जी। ये क्लियर है? हाँ जी। इक्वेशन क्या है? x1 plus 2x2 plus 3x3 plus nxn equals to 0। अब हाँ, सब कुछ हो गया है। यस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तुम्हें याद है? बेसिस कैसे निकालते हो तुम? कोई एक वेरिएबल सेपरेट कर लो, राइट। एम आई करेक्ट? यस। तो ये जो u का एलिमेंट है x1 x2 xn, ये u में है, इसका क्या मतलब है? इसको तुम कैसे लिख पाओगे? -2x2, राइट, -3, ये x1 की वैल्यू है। एम आई करेक्ट? यस। बाकी अच्छा, एज इट इज, बाकी xn एज इट इज। एम आई करेक्ट? यस यस। तो फिर तो तुम्हें पता है यहाँ से क्या करना है। एक बार x2 अलग करो, एक बार x3 अलग करो, ये करा है ना हमने बहुत बार। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर x2 अलग करोगे तो पहली एंट्री क्या होगी? -2 -x3। नहीं, वो तो x3 नहीं कलेक्ट कर रहे ना, हम x2। देखो जब x2 कलेक्ट कर रहे हैं यानी बाकी सबको 0 पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, तो क्या बचेगा? -2x2 और x2, राइट। तो सर ये बाकी जो आगे वाला कॉमन्स के बाद भी तो 1 बचेगा। बच्चे उधर तो x3 है ना सर। नहीं, जो x2 हमने निकाला है, इससे पहले वाला जो x2 है यहाँ जो अंडरलाइन है, तो उससे पहले बचेगा -2 बचेगा। हाँ, पहले -2 बचा, फिर 1 बचेगा कॉमा में। एग्जैक्टली, तो मैं लिख लूंगा तो -2 1 देन 0 0 सब कुछ 0, राइट। ओके, इज दिस क्लियर? हाँ जी। x3 का बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं? -3, वेरी गुड, 0 2 1, वेरी गुड, 0 0 0। यस, ऐसे करते लास्ट में आओगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? -n, राइट। देन 0 0 0 0 n, और लास्ट में 1 1। तो अब तुम्हें इतना प्रैक्टिस तो तुम्हें कर लेना चाहिए कि तुम्हें पता लग जाए कि यही बेसिस बनेंगे। हाँ, ये बेसिस है। बेसिस क्या बनेंगे? क्या बनेंगे बेसिस? -2 1 0 0 0, राइट। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर -3 0 1 0, करते -n 0 0 0 up to 1 करते हैं। ये बेसिस बन गया।
हाँ जी। चेक करना है तुम्हें तो, ठीक है। एंड चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, ये तुम्हें भी बता चुका हूँ 10 बार, क्योंकि ऊपर तुमने प्रूव किया है ये जिस तरीके से तुम निकालते हो बेसिस, इसका मतलब क्या है कि स्पैन तो कर ही रहा है यू के एलिमेंट को, है ना। स्पैन करने का ये मतलब है ना, देखो x1 x2 xn तुमने किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म, यस और नो, यस, यही मतलब होता है ना स्पैन का। हाँ जी। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होगा भाई, क्योंकि मान लो ये जीरो है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लिया तुमने, तो ये एक्चुअली किसके इक्वल था, 0 into x1 plus 0 into x2 plus 0 into x3। नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट तुम दिखाना, ठीक है। ओके भाई, ये किस चीज के इक्वल है, देखो जब तुमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लिया, तो यानी कि इसके इक्वल होगा, ये चीज 0 0 0 के इक्वल होगी, एम आई करेक्ट, यस। तो यहाँ से xn 0 आ गया, x3 0 आ गया, x2 0 आ गया, यस सर। ये तो स्केलर लिए ना तुमने साइड में, ओके। तो मैं बार बार तुमको कह रहा हूँ, जिस तरीके से हम ये बेसिस निकालते हैं, ये दोनों चीजें खुद ही प्रूव करता है, ठीक है। ओके, यू जस्ट डू सो मेनी क्वेश्चंस सो दैट यू हैव दिस कॉन्फिडेंस। नाउ व्हाट डज इट इंप्लाई, कितने बेसिस हैं, कितने एलिमेंट है इसमें, काउंट करो, n एलिमेंट्स, ना काउंटिंग कैसे, देखो 2 3 4 5 6 करते करते n तक, n एलिमेंट्स, n तक कितने एलिमेंट हो गए, n माइनस 1, राइट। अच्छा हाँ, 1 नहीं है, ठीक है, ओके, यस, ओके। तो व्हाट यू डू, यू ट्राई दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ओके। तो सर इन्होंने फिर मुझसे इसमें ब्रैकेट में लिख रखा है, हिंट में यूज रैंक एनालिटिक्स, वो भी हम करेंगे, पहले जो हमको आता है वो करेंगे, ठीक है, ओके। तो फिफ्थ का बी ट्राई करो अभी, मैं 5 मिनट में आया, ठीक है। एंड पेज नंबर 6 का फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो अभी के अभी, ठीक है, मेरे सामने, ओके, आई एम हियर ओनली, ओके, ओके।
हेलो हाउ इज इट गुड सर ट्राइंग यस 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 एज वन शुड ओके द ओनली वे फॉर यू टू डू मैथ्स इज कि तुम्हें बैठाया जाए अपनी आंखों के आगे ऐसे ही है क्या नहीं सर मुझ तुम्हें क्या कहते हैं मुझसे डर वर तो नहीं लग रहा ना नहीं इससे डर नहीं लग रहा सर बट समझ आ जाता है मुझे बट मैं क्वेश्चंस लेके बैठता हूं तो मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है ठीक है देखो क्वेश्चन समझ में आना इज हाफ ऑफ द टास्क ठीक है दूसरी चीज है कि उसको लिखो पहले वो क्या पूछ रहा है ठीक है एक चीज इतने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं तुमने देखे मैं भी सबसे पहले वो चीज लिखता हूँ वो जो पूछना चाह रहा है टू शो करके राइट पहले हम एक चीज देखते हैं रैंक नलिटी कंडीशन मैं एक्चुअली आई हैव गॉन आउट टू टेक माय लॉन्ड्री आज सैटरडे है ना और आज छुट्टी है यहाँ पर क्योंकि आज हिंदू नव वर्ष है तो उसके लिए सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू यू और तुम्हारे पूरे परिवार को हाँ चलो आगे देखते हैं ठीक है दूसरा क्वेश्चन क्या था Find a basis for the subspace below and justify your answer. तो देखो ये किसका सबस्पेस है R4 का राइट हाँ सर अब मैं बताता हूँ मेरा क्या एक क्वेश्चन लिख लूँ क्वेश्चन लिख लो मैं ठीक है हाँ तो कितने क्वेश्चन गिवन है इसमें 3 तो ये सबस्पेस तो होगा ना विदाउट एनी डाउट या ठीक है हाँ आप बताओ क्या किया तुमने सर जैसे इसने पूछा कि हमें एक बेसिस निकालना है नीचे गिवन सबस्पेस के राइट यस और हमारा जो x y z w है वो R4 में तो मतलब बेसिस भी पक्का R4 में ही होंगे वेरी गुड तो मैंने उस बेसिस को फिलहाल के लिए x1 y1 z1 w1 से डिफाइन कर दिया बट ये तो एक एलिमेंट हुआ ना बेसिस का समझ रहे हो ये तो बेसिस का एक एलिमेंट हुआ ना बच्चे ओके तो मैं एक जनरल फॉर्म में निकालना है बेसिस बेसिस में तुम्हें नहीं पता ना एक तुम कह रहे हो कि x1 y1 z1 अच्छा तो तुमने बेसिस का एक एलिमेंट लिया ओके आगे बट बेसिस में देखो मैं अभी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इक्वेशन लिखा करो जो भी गिवन है ओके इक्वेशन गिवन है फिर ये इक्वेशन गिवन है राइट यस और दूसरी इक्वेशन क्या है z इज इक्वल टू माइनस w राइट ये स्टेप 1 माना करो ठीक है स्टेप 1 ओके स्टेप 2 होता है इनको सॉल्व करो इक्वेशन सॉल्व करना तो सीखा है ना हमने बचपन में सब्स्टिट्यूशन यस ऊपर भी तो हमने यही किया था ना सब्स्टिट्यूट करके तो क्या करा था x1 को सॉल्व किया था और तो इक्वेशन नहीं थी हमारे पास एक ही थी उसको सॉल्व कर लिया राइट हाँ जी तो इसमें कैसे सॉल्व करोगे सो दिस इज स्टेप 2 बस स्टेप रहने देते हैं ठीक है अब स्टेप 2 में सॉल्व करो सर सॉल्व मैंने किया था तो ऊपर जाते जाते x मतलब थर्ड इक्वेशन जीरो ही हो गई थी दोनों नहीं देखो z क्या गिवन है माइनस w राइट थर्ड इक्वेशन से तो z फिक्स हो गया ओके यस या w फिक्स करना है किसको फिक्स करना है तो z को ही कर लेते हैं ठीक है तो z इज इक्वल टू माइनस w अब जहां जहां z है वहां पुट करो माइनस w यस तो x क्या हो गया उल्टा जाओ y इक्वल टू x प्लस w ठीक है पर x की क्या वैल्यू गिवन है हमको y प्लस z यस जस्ट अ मिनट मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ एक मिनट रुको जस्ट अ मिनट गिव मी अ मिनट ओके सर तुम्हें मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है मैट्रिक्स लाइक ऑगमेंटेड फॉर्म और वो सब सर वो मैंने किया तो था इंटरनल में बट मतलब इतने अच्छे से नहीं आता ओके
तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्चुअली, x माइनस वाई माइनस जेड इज जीरो, राइट? पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन क्या है, x माइनस प्लस डब्ल्यू इज जीरो। इज दिस करेक्ट? यस। और तीसरी क्वेश्चन क्या है, z प्लस डब्ल्यू इज जीरो। यस। मेरा क्वेश्चन है कि इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी कि देखो वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, ये चीज पता है। अगर वेरिएबल ज्यादा होते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके चलो वो सब चीजें छोड़ो, मेरा पॉइंट वही है कि सॉल्व करना चालू करो, ठीक है? हाँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे पहले तो। बना सकते हो वो, क्या बनेगी? 1 -1 -1 0। और इधर भी एक जीरो, राइट? हाँ, उधर वो लाइन के साथ। यस ठीक है। अगला 1 -1 0 1। यस जीरो, उधर भी जीरो। फिर और 0 0 1 1 0। वेरी गुड, ये सही है। हाँ जी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्या ऑपरेशन लोगे? R2 goes to R2 minus R1। वेरी गुड। तो ये क्या बना? फर्स्ट तो सब सेम रहेगा। फर्स्ट सब सेम रहेगा, वेरी गुड। सेकंड में बन जाएगा 0। 0 सेम माइनस, फिर 1 एंड देन बोलो बोलो, ज्यादा जल्दी है, ओके बोलो। पहली एंट्री 0 आएगी, राइट? हाँ जी। दूसरी भी 0। यस। तीसरी 1। वेरी गुड। फोर्थ भी 1। फिर 0। यस। थर्ड बाकी सब। अब दिख रहा है अब क्या करना है? अब हमें एक सेकंड से, सेकंड और थर्ड रो सेम हो रही है ना? सेकंड और थर्ड हाँ सेम हो गई। तो मैं ये कर दूं R3 goes to R3 minus R2। सर क्यों, मतलब किस रीजन से? फिर ये वो जीरो हो जाएगी ना पूरी। हाँ। और ये भी एक टारगेट होते ना, जीरो लाना नीचे। तो 1 -1 ये तो एज इट इज, राइट? फिर 0 ये भी एज इट इज, एम आई करेक्ट? हाँ जी। आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा? अभी सब 0 हो जाएगा लास्ट वाला। वेरी गुड। तो ये एचलॉन फॉर्म में, एचलॉन फॉर्म नहीं पता होगा जहां तक है, बट अच्छा यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अब इसको रीड करो, ये क्या बनेगा, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। और z प्लस w इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, ओके। हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे। z की वैल्यू क्या आएगी? माइनस w। उसे फर्स्ट वैल्यू y प्लस z which is y minus w। तो इनको कोई x, y, z, w किसमें गिवन था? u में। तो है कि तुम इसको कैसे लिख सकते हो, x को कैसे लिख सकते हो? y माइनस w, देन y को y, z को माइनस w। यस। और w एज इट इज, ओके। देखो तुम ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हो कि तुम सोचो कि मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ, x, तुम्हें जितने वेरिएबल हटा सकते हो उतने हटाने हैं, ठीक है? ओके। किल एज मेनी एज वेरिएबल जितना हो सके। तुमने देखो यहाँ पे आते थे किसको किल कर दिया, x और z को किल कर दिया ना इस फॉर्म में। इससे ज्यादा वेरिएबल किल कर सकते हो? नो नहीं कर सकते, राइट? तो ये कैसे पता लगेगा कितने किल कर सकते हैं? रैंक पता है मैट्रिक्स का क्या होता है? रैंक
जो नीचे साइड में लिखा होता है। नहीं नहीं, ओके ठीक है, कोई नहीं, बट ओके, जितने हो सके उतने वेरिएबल किल करने हैं, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन फाइंड द बेसिस, राइट। एक बार ही y को कॉमन ले लेंगे। एक बार तुम्हें पता है y को कॉमन लेंगे और एक बार z को, नहीं w को। हाँ, तो बताओ क्या आएगा, पहला क्या आएगा, पहली एंट्री 1 1 0 0, वेरी गुड। देन w is -1 0 -1 and 1। यस, और तुम्हें बेसिस भी पता लग गया। यस तो नो। यस, ओके, ये बेसिस हो गया ना। हाँ जी। देखो, अगर तुम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल, मतलब ऐसा हो सकता है कि तुमने एक वेरिएबल नहीं किल किया, राइट। मान लो तुमने यहाँ सिर्फ z रखा। अच्छा, मान लो ये हुआ, ये तो ठीक है, राइट, ये हमको पता है। मान लो तुमने ये किया जहां पे तुमने लिख दिया y माइनस डब्ल्यू, y एंड z एंड w, ये भी तो लिख ही सकते हो ना। गलती हो सकती है ना पेपर में। तो तुम तब यहाँ क्या लिखोगे, गान गान 0 0, राइट राइट, प्लस z, बोलो 0 0 1 0, एंड w लिखोगे -1 0 0 1, राइट। तो यहाँ से तुम्हें क्या लगेगा कि बेसिस क्या निकालोगे तुम यहाँ से, 1 1 0 0 0 0 1 0 and -1 0 0 1। ओके, तो जब तुम ऐसा करोगे तो तुम ये चेक करो कि ये वाला जो एलिमेंट है ये u का एलिमेंट है ही नहीं। इज इट एलिमेंट ऑफ u? सर एक सेकंड, देखो थर्ड इक्वेशन चेक करो, z प्लस w शुड बी 0, राइट। ओके, हाँ, और ये भी नहीं है। एम आई करेक्ट? यस। तो यहाँ से तुमको पता लग जाएगा कि बेसिस एलिमेंट नहीं है, राइट, ये बेसिस हो ही नहीं सकता। यस, तो ये चेक करने के तरीके हैं। ओके, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, आगे वाला पार्ट। ये गलती कर सकते हो ना एग्जाम में। तो बेसिस लिखने के बाद चेक किया करो कि वो सबस्पेस में लाई करेंगे या नहीं करेंगे। भाई बेसिस तो यू के है ना, तो यू में लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यस सर। तो सर हमें जैसे आप लोग बोल रहे थे कि कितने वेरिएबल्स किल करने हैं, कैसे पता चलेगा फिर? जितने कर सकते हो। अब वो चीजें मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें रैंक पता है क्या, एचेलॉन, तुम्हें अगर कुछ नहीं पता तो फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एंड देखो जब तुम ऑगमेंटेड, ये तुम्हें रो ऑपरेशन तो लगाने आते हैं ना। हाँ जी सर, ये तो आते हैं। तो जितने हो सकते, रो ऑपरेशन क्यों लगाते हैं हम, ताकि हम जितना हो सके नीचे जीरो बैठा सके, राइट। सर यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 करना होता है ना। डायगोनल एलिमेंट को 1 1 करना होता है और उससे नीचे सबको 0 0 करना होता है। तो स्क्वायर नहीं है ना बच्चे, तो यहाँ डायगोनल का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ओके, तो ये बेसिस आएंगे, चेक करना, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, तो डायमेंशन कितना हो गया, 2 2 हो गया ना। इज दिस क्लियर? यस सर। अब तुम मेरे से क्या पूछ रहे थे, रैंक नलिटी के थ्रू, राइट। देखो, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें बता देता हूँ फिर, ठीक है? या बाकी क्वेश्चन करें पहले, बाद में देखो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, ठीक है? ये जो यू है, यू क्या है तुम्हारा? x1 से लेकर xn तक। such that, just a minute, आगे up to nxn is equals to 0. nxn, yeah, just a minute, is 0, right? yes. अब तुम देखो, मैं अगर ये करूं fn to fn का एक लीनियर मैप डिफाइन करूं, मैं अगर ये लीनियर मैप डिफाइन करूं, ओके, लीनियर मैप क्या है? ये जो इक्वेशन है इसको लीनियर मैप बना लिया करो, ठीक है? ओके, ये अगर है तो इसका रेंज कहां पर है? यहाँ पे क्या, ये एक सम है ना? x1 क्या है? एक रियल नंबर, राइट? यस। x2 क्या है? एक रियल नंबर। इज इट कंफ्यूजिंग व्हाट आई एम राइटिंग? नहीं सर, ठीक है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे fn आएगा क्या? रियल नंबर का सेट होगा या f आएगा? मेरा एक क्वेश्चन है, f आएगा या fn आएगा? f, सिंपल f आएगा। यस, व्हाई? क्योंकि सम तो f में है ना, सम कर रहे हैं हम सब चीज का। हाँ जी। दिस इज अ लीनियर मैप, यस और नो? यस, क्लियरली ये लीनियर मैप है। यू जस्ट चेक, ओके? ओके, रैंक नलिटी थ्योरम याद है? वो क्या कहती है? रैंक ऑफ टी प्लस nullity of t, it should be equal to, basically rank of t is dimension of range of t plus dimension of kernel of t. It should be equal to dimension of fn, right? जो डोमेन में था हमने देखा था ना, इसका डायमेंशन कितना है? n। ओके, नाउ अब मेरे को बताओ रेंज का डायमेंशन कितना है? f एक होगा ना, पूरा एक, ये एक होगा या तो उससे कम होगा, ये सर नो? हाँ जी। डायमेंशन रेंज या तो f होगा या उससे कुछ छोटा होगा, एम आई करेक्ट? यस। तो रेंज का डायमेंशन ऑफ रेंज ये क्या होगा? या तो 1 होगा या 0 होगा। ओके, मतलब ये रेंज इसका क्या कहते हैं, इसका इससे छोटा होगा ना? यस और नो? यस। सो डायमेंशन 0 भी तो हो सकता है रेंज का, या तो 1 होगा या 0। तो 0 होने का क्या मतलब है कि रेंज खुद क्या है? पूरा का पूरा 0 सेट। यस और नो? यस। रेंज क्या है? पूरा का पूरा रेंज ऑफ टी 0। क्या रेंज ऑफ टी 0 है? नो, नहीं है ना, क्योंकि देखो टी ऑफ 1 0 0 0 क्या आ रहा है? 1, राइट? तो ये तो 0 नहीं है। हाँ जी। दिस इज नॉट ट्रू, as t of 1 0 up to 0 is 1, am I correct? Yes. तो डायमेंशन क्या हो गया रेंज का? 1। So therefore what does it imply? कर्नल का डायमेंशन क्या हो गया? n minus dimension of range t, right? Yes, n minus 1. n minus 1। अब कर्नल ऑफ t निकालो। कर्नल ऑफ t क्या होता है?
x1 x2 xn डोमेन के एलिमेंट राइट, जो जीरो पे मैप करेंगे, जो अंडर दिस टी जो जीरो पे जाएंगे, यस और नो? यस। बट टी ऑफ x1 x2 xn क्या था? x1 प्लस 2x2 प्लस nxn, ये जीरो हो, am I correct? राइट। But isn't this the subspace U? Yes or no? यस सर। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी जो कि n-1 था, n क्योंकि कर्नल टी u था, देखो डायमेंशन ऑफ u यानी किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, यस और नो? यस। और कर्नल टी का डायमेंशन क्या आया था? n-1। तो ऐसे भी तुम प्रूव कर सकते हो, ठीक है? ओके। अब एक मैं तुमको ट्रिक बताना चाहूंगा, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क और नॉट। देखो मैं एक ट्रिक तुमको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो पेपर में बहुत मदद करेगी। ओके। देखो तुम्हें पता है आर एन अगर मैं लूं, राइट, और इसके सबस्पेस, तो कलेक्शन में तुम्हें बता ही चुका हूँ कैसा होगा, राइट? कैसा होगा सबस्पेस का कलेक्शन? ऑल दोस x1 x2 xn in Rn such that उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो। उनके कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होंगे, मुझे नहीं पता कितने, राइट? मान लो अल्फा 1 1 x1 अल्फा 1 n xn is ये पहला लीनियर ये एक पहली इक्वेशन है, राइट? ओके। दूसरी में मान लो अल्फा 2 1 x1, ओके, एंड मुझे नहीं पता कितनी है, लेट्स से अल्फा m1 x1 प्लस अल्फा m1 xn is 0, ओके? यस। ये कितनी इक्वेशन है टोटल गिन सकते हो? 1 2, यहां से काउंट कर सकते हैं, तो 1 2 और m तक जा रहा है, राइट? m इक्वेशंस। तो हमेशा याद रखना डायमेंशन ऑफ w जो होगा वो लेस देन इक्वल टू m ही होगा, ठीक है? ओके। वो m भी हो सकता है अगर कोई इक्वेशन दूसरी में से ना निकल के आए, समझ रहे हो? मतलब मान लो मैंने ये इक्वेशन बनाई x + y 0 r2, और एक ये इक्वेशन बनाई, तो ये दोनों सेम ही इक्वेशन है ना, तो तुम्हें ऐसी सारी इक्वेशन हटा देनी है फालतू की। ओके। तो फालतू की जब हटा दोगे उसको हम कहते हैं रिडंडेंट, ओके? रिडंडेंट मतलब फालतू की। तब ये डायमेंशन जो होगा वो पूरा का पूरा m होगा, ठीक है? ओके। तो सर जिसका किल रिडंडेंट मतलब जो भी फालतू की इक्वेशन है उनको हटा दो, और उसके बाद अगर ये m इक्वेशन है तो वही तुम्हारा डायमेंशन है। ओके। तो सर जो हमें दे रखा था क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें अगर हम ये डेट अप्लाई करें तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ तो एक ही इक्वेशन है ना, यहाँ ये तो एक ही इक्वेशन थी, राइट? हाँ। ओह सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, n - m, सॉरी आई शुड राइट n - m, ओके? ओके। या n - m, ठीक है? अब देखो जैसे इस पे आओ एक बार, ये w तुम्हें दिख रहा है एक ही इक्वेशन है, राइट? तो देखते क्या बता, तो एक ही है तो यानी एक तो फालतू की नहीं होती कभी, राइट? तो इसका डायमेंशन क्या होगा? 2 - 1, राइट? सर ये 2 कहां से आया? ये n क्या था? ये rn वाला n था ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके। तो ये r2 है और एक ही इक्वेशन है, ठीक है? ओके। तो एक तरीके से rn - इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है? ओके।
अब देखो इसमें तुम देखते हैं बता सकते हो, ये जो सबस्पेस है इसका डायमेंशन तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा कितना आना चाहिए, n-1। n-1 ही आता है ना। हाँ जी। देखो अगर एक बार तुम्हें आंसर पता लग जाता है तो आसानी रहती है ना क्वेश्चन करने में। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन था, ये जो तीन इक्वेशन थे, अब ये देख के लगेगा कि इसका क्या होना चाहिए आंसर, कि 4 - 3 राइट, वन, बट आंसर तो 2 था, याद है। या क्यों है ये, क्योंकि इसमें एक फालतू की इक्वेशन है। देखो अगर x इक्वल टू वाई प्लस जेड ले रहे हो, y इक्वल टू एक्स प्लस डब्ल्यू ले रहे हो, है ना, तो देखो ये x की वैल्यू ऊपर डालो तो ये y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बन जाएगा, तो x y कट के z प्लस डब्ल्यू 0 हो गया। यस, तो ये दो इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन तो दे ही रही है ना अपने आप। यस, तो यानी ये वाली जो इक्वेशन है क्या है, फालतू की इक्वेशन है। अब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अब तुम बताओ क्या होना चाहिए इसका डायमेंशन, 4 - 2, और यही था ना। हाँ जी, तो ये ट्रिक याद रहेगी। हाँ जी सर, एंड दिस इज वेरी यूजफुल ट्रिक, ओके। फॉर एग्जांपल यू नो, तो अब तुम्हें सबस्पेस भी पता है आरएन के, है ना, आरएन के सारे सबस्पेस पता है ना तुमको अब। हाँ जी, और उनका डायमेंशन भी तुमको पता है अब। यस सर, यस, सो एंड दैट इज अ लॉट, राइट, आई मीन, इज दिस क्लियर। हाँ जी सर, क्लियर है। तो अब तुम्हारी एक्सरसाइज शीट में यानी बुक में जो है, क्योंकि अगली क्लास से हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन देखो इस पे आते आते हैं सबस्पेसेस और ये सब चीजों पे, ओके, और लास्ट में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अगली क्लास से हम वो करना चालू करेंगे, बट आई वुड वांट यू टू डू एज मेनी एज क्वेश्चन ऑन दिस लाइन, ठीक है। हाँ जी, इज दिस फाइन। हाँ जी सर, या एनी अदर डाउट, क्योंकि यू नो इट्स अ लॉट, राइट, यू मस्ट हैव बीन हंग्री नाउ। हाँ जी, okay then maybe we'll meet in the evening. Okay sir, I'm not sure, okay, just okay, yeah, okay sir, okay Moksh, okay, all right, thank you sir, yes. So today we saw the today we saw the linear algebra techniques, as is the doubt of many students that have been mailing me. So here we discuss some questions, particularly about basis and linear combination. And maybe in the next class we'll continue with the indirect methods such as Jacobi methods and Gauss-Seidel method, which we have already seen in the previous lectures. Now, in the next class, we will do the error estimation of these methods and under suitable condition when this method converge. So we will see that in detail.